हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कूलॉम लॉ के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो स्टैटिक चार्ज होती है दैट इज ए वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी, द फिजिकल प्रॉपर्टी, यू कैन से लाइक दिस, because due to aberration the electron only transfer, it is not chemical one. Remember, only the electron transfer from one material to other material depending upon the the nature of material electronegativity, like silk and amber or ebonite. If you abrade that to each other, एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करते हैं तो एक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा और दूसरे में एबोनाइट विल बी पॉजिटिव एंड सिल्क विल बी नेगेटिव लाइक दैट। सो ये बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमने देखा है। तो एक्सपेरिमेंटली चार्ल्स कूलॉम, फ्रेंच साइंटिस्ट, invented this one electrical charge, and he proposed some calculation based on his experiment कि एक्चुअली हमने देखा था कि चार्ज में तीन प्रॉपर्टी होती है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, देन क्वांटाइजेशन ऑफ दिस चार्ज could be possible, and it is also conservative. The total amount of charge in a system should be constant. So Coulomb has proved like this, and he proposed that last video we have said about the point charge, like your point mass की तरह कि in a bigger size of 1 meter is there, so you no need to consider all these things. So you can focus on that matter is totally squished into a small point which is representing the total mass. Similarly, एक बहुत बड़ा ball है which is having electrical charge, in a big sphere, having electrical charge. Instead of considering all these points of charge in the surface, so you can consider the total ball is a point, only a single point, where the total charge is concentrating on that only. So this is called point charge. तो point charge के दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थोड़ा दूर है, यानी जो ऑब्जेक्ट की साइज है, ऑब्जेक्ट की साइज से जो डिस्टेंस है, इफ दे आर लिटिल बिट कंसिडरेबल हाई इन रेशियो, so in that case Coulomb law applied to be proved, and it is valid. And he said the force between two this point mass of q1 q2, the two charges, and if they are having the distance separated to each other, maybe this is, you can say, r, the distance having a part of r. Whether this could be positive or negative, that's not an issue. So the interaction of force between the two point charges q1 and point charges q2, and the force will be exerted by them. It will be, this is q1, this is q1 and q2 over r square. Actually, this is k. He found that initially that the force initially, how it actually come to this conclusion like this. उन्होंने देखा कि भाई if you increase, suppose this is fixed, you put a fixed charge over here, then he increase this one of this. So force varies this one, q1 and q2. He found force जो है, force between the two, उन्होंने एक टॉर्सनल बैलेंस भी यूज किया था. टॉर्सन इज ए वेरी सेंसिटिव वन. Torsion. To measure the smallest force, you can use the torsion. Torsion means twisting. Because छोटा सा भी मूवमेंट अगर फोर्स होगा तो इसमें कहीं ना कहीं एक हल्का ट्विस्ट, दिस एंगुलर ट्विस्ट हियर, इट विल बी लाइक दिस. सो उन्होंने उस टॉर्सन बैलेंस की यूज करके जो छोटा से छोटा फोर्स भी उन्होंने ट्राई टू मेजर दिस वन एंड इन्फॉर्म दैट द फोर्स between two charges, interacting charges, is depending upon this amount of charges, which is already last time हमने देखा था कि electrical charge है quantum, it is a quantum, it is not abstract, it is a value. तो इन दोनों की value अगर हम change करते हैं, it could be the force increase or decrease like this. And then he suggests also experimentally proved like this कि दोनों जो distance है, दोनों distance जो है बीच में, अगर हम उसको चेंज करते हैं, डिस्टेंस चेंज करते हैं बिटवीन द टू
electrical potential charges. So it will varies, the distance square in inverse, distance square in the inverse. यानी हम distance जैसे बढ़ाते जाएंगे वो inversely but square form में it will be reduced. यानी like this, the force and the distance अगर बढ़ेगा तो initially और धीरे धीरे ऐसे gradually हो जाएगा probably. And in case of charge will what will happen this charge one? So this will be like this. Q1 Q2 I can say the Q1 or Q2 or either Q अगर मैं दोनों के मिल के अगर वैल्यू Q बोलता हूँ या Q स्क्वायर बोलता हूँ so it will be simply increasing 0 to 0 and like this on. ठीक है, तो ये कूलम्ब्स की फॉर्मूला था एंड सो ये दोनों को जो तीनों पैरामीटर ले लिया it comes to know that the force actually varies as Q1 Q2 over R square. ठीक है, and to make this unit, so if all are one, if it is one, then if it is one in SI system में मान लो this is 1 meter maybe, and in SI system it is 1 coulomb. So force is how much? So उस केस में हमने ये लिखा कि F equal to K into Q1 into Q2 over R square, और यहाँ पे अगर फोर्स कितना है तो हम उसको जान लेंगे कि फोर्स कितना आ रहा है, दैट विल बी द K वैल्यू. ठीक है, F विल बी K when Q1 equal to Q2 equal to 1 coulomb say, and R equal to 1 meter. In that case F will be K. ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा कि भाई ये जो है सो F इज एक्चुअली कमिंग, जब दोनों चीज को हम पर्सनल बैलेंस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव, राइट, रिमेंबर दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फाउंड. अगर 1 कूलम्ब की दोनों चार्ज अगर लिया है 1 कूलम्ब, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो इट विल रिपल्स, इफ इट इज पॉजिटिव बोथ देन इट विल रिपल्स ईच अदर, इफ इट इज नेगेटिव वन ऑफ द नेगेटिव देन इट विल अट्रैक्ट ईच अदर लाइक दिस. ओके, सो so 1 coulomb charges placed in a distance of 1 meter. So force exerted between the two actually coming, it will coming around 9. It is experimental proof. It is 10 to the power 9 Newton, right? So it will become 9 into 10 to the power 9 Newton. So K is actually, so it is the K. When the Q1 Q2 end, this is 9 into 10 to the power 9 Newton it is coming. And the formula will be coming like this. So formula will be is root 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2 over R square. ठीक है, ये उसकी फॉर्मूला है. अब धीरे धीरे this property actually, what is this property? Actually this property is saying that for a particular media permittivity of this electrical charge, permittivity मतलब इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो कर सकता है. Simply you can say, अरे भाई suppose two bodies लेती है having a distance, this is plus or this is plus like this. It is having here is there. So it is charge of permittivity कि कितना इसकी जो magnetic force है. In earlier science people thought that electrical and magnetism is different, but once the Coulombs found all this interaction, तो धीरे धीरे अब electromagnetism is a great subject engineering, and in daily use also we are using electromagnetism, a lot of from calling bell to magnetic brake also. So ये जो constant है, this constant actually what is saying, it is the permittivity between the two, it is a medium, then two charges are kept in between this medium. So ये जो एक दूसरे को या तो attract करेगा या जो repulsion करेगा, the force exerted, it will come into the field effect again. वो बाद में हम पढ़ेंगे field effect के साथ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये कितना attraction और रिपल्सन कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मीडिया. यानी
जो फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन concentration, this is actually what is happening, it is the concentration less between the same charges, so it is pull or push. So ये pull और जो push है, this magnetism, one type of magnetism you can say. So the interaction of this magnetism between the two poles or two charges will depend upon the electronegativity, magnetism property of the medium itself. So it's a permittivity. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर मीडियम, वो उसको परमिटिविटी हम कहलाएंगे उस मीडियम का, एंड दिस कांस्टेंट इज लाइक दिस. सो एंड दिस इज डिफाइंड बाय F equal to 4. Experimentally they have done like this, and this is epsilon naught 4p and this is q1. this k को बाद में हमने इसको वर्किंग इजी करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए k is replaced by 1 by 4 pi epsilon naught. ठीक है. So from this you can consider, you can find this one, epsilon naught भी आप वैल्यू बात निकाल सकते हैं. K is equal to this one 1 by 4 pi epsilon naught. So epsilon, this is how much? This is 9 into 10 to the power 9. 10 to the power 9. अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा मैं भी वो भी बता देता हूँ. This unit is K is क्या होगा actually? K is from this formula, यहाँ पे K is क्या हुआ? K is actually force into distance square over Q1 and Q2. So the unit will be unit. I am talking about the unit. So unit will be Newton, then meter square over this is C square. Coulomb square. So it is actually Newton meter square and Coulomb square, right? Newton meter square then Coulomb square minus 2 like this. Dimension you read in 11 plus. ठीक है, फिजिक्स में जो पढ़ा था ये इसका हो जाएगा. तो यहां से हम निकाल सकते हैं दिस इज राइट. सो दिस इज एक्चुअली so from this you can find the epsilon naught equal to, epsilon naught will be कितना हो जाएगा 9 into 10 to the power 9. No, this should be negative 1. This should be negative, it will come down. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 by 4 pi and into 9 into 10 to the power 9. ठीक है, 10 to the power 9 हो जाएगा. अब इसका यूनिट क्या होगा फिर? अब देखिए k के ऑपोजिट हो गया, इसके यूनिट अगर यहाँ पकड़ाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ क्या होगा और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है. दैट विल आल्सो आई विल शो यू. ठीक है, तो दिस विल कमिंग अराउंड 8.85 into 10 to the power minus 12. It will coming around, if you calculate like this, it will come in this one, this, and it will be एप्सिलॉन नॉट. और एप्सिलॉन नॉट की आप यूनिट देखिए. अब एप्सिलॉन नॉट की मैं अगर यूनिट बोलता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं सीधी इसी फार्मूला से हम एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करें. सो एप्सिलॉन नॉट वहाँ पे क्या था, ये जस्ट ये था, तो इसकी जस्ट उल्टा हो जाएगा देखना इसका, बिकॉज k इज इक्वल टू k इज दिस, नो k इज दिस. सो विद सम कांस्टेंट एप्सिलॉन विल बी जस्ट ऑपोजिट, एप्सिलॉन नॉट विल बी जस्ट ऑपोजिट डायमेंशन. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो. दिस इज एक्चुअली व्हाट इज, सो q1 q2 over a plus square. So this is how much actually, this is Coulomb square over Newton then meter square. यानी एप्सिलॉन की जो है that is Coulomb square per Newton per meter square. This is the permittivity of this media where the two charged body interacting each other. This is epsilon naught and the unit will be Coulomb per Newton per meter square. Okay, what does it mean? यानी दो 1 Coulomb की ऑब्जेक्ट परमिटिविटी, ठीक है, रखते हैं तो पर न्यूटन में कितना कूलम एग्जर्ट करता है, यानी कितना कूलम की
फोर्स एग्जर्ट करता है, यानी इतना फोर्स में पर न्यूटन फोर्स एग्जर्ट करने के लिए कितना कूलम चाहिए पर मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एग्जर्ट करने के लिए कितना कूलम का चाहिए, दैट इज द परमिटिविटी। ठीक है, विल कम लेटर ऑन इन द फील्ड इफेक्ट, आपको उसमें दिखाएंगे। तो दिस इज एक्चुअली ब्रॉड कॉन्सेप्ट इन इन मैथमेटिकल अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट। अब इसको अगर दो पॉइंट चार्ज है interacting, this force, अब मैं वेक्टर कंसेप्ट में थोड़ा सा क्लियर करता हूं, because this is a force. Now we know the charge is scalar because it does not have any direction. So इसको अगर हम जो फोर्स है, now the output is force, हमने वेक्टर उसमें चैप्टर में पढ़ा था क्लास 11 के अंदर कि वेक्टर जो है, सपोज any vector r, right, if you multiply with some constant, this one k, suppose any number, integer number, so this is n into maybe some other vector, this one, so यानी ये दोनों वेक्टर अगर कोई कांस्टेंट के साथ कोई नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, that will also receive the other vector. In this case also force, अब देखिए force हमारे पास क्या है, q1, right, q2 and this is प्रोपोर्शनल बाय r स्क्वायर। ठीक है, सो अब देखिए ये तो कोई नंबर है। नाउ r is actually it's a पोजीशन वेक्टर। r क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, r एक पोजीशन वेक्टर है। सो इस पोजीशन वेक्टर में r की पोजीशन वेक्टर है, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन होगा या इसकी जो इंटरेक्शन ऑफ सम फोर्स विल वर्क, सो फोर्स, इसीलिए इट बिकम्स अगेन ए वेक्टर, इट बिकम्स नाउ ए वेक्टर बिकॉज़ दिस r इज इटसेल्फ इज ए वेक्टर। अदरवाइज दीज आर ऑल स्केलर, इसका जो चार्ज है स्केलर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज का स्केलर प्रोडक्ट। सो ये जो है ये वेक्टर है। तो इस वेक्टर के इंटरेक्शन में आप वेक्टर कंसेप्ट में एक्चुअली कैसे ये चीज समझाया जाए, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेक्टर कांसेप्ट। सपोज आप लोग जानते हैं कि अपने ब्रेन के अंदर भी इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो करता है, और इससे जिसके अंदर जितना दिस स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होता है, दैट मैन एक्चुअली this nervous system synchronization very fast, and that man IQ is very high. अच्छा, अब हम देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट जो है, दो मेटालिक बॉडी विद they are charged and they are apart from a point of reference. वेक्टर लिया था, पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा. सो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस थोड़ा इधर ले ले तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना अच्छा रहेगा. सपोज इसकी जो पॉइंट है, एक्चुअली यहाँ डिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है. नाउ सपोज दिस इज पोजीशन वेक्टर एंड ये r1 की डिस्टेंस में है फ्रॉम रेफरेंस 0 0, ठीक है, वेक्टर कॉन्सेप्ट. This is 0 0 and this q2 is actually in a r2 position from reference. From reference it is from r2 distance, right? r2 distance में है. Now we need to find out the force interaction between the two. Force interaction between the two charged body, right? Static charged body. अब देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है. इट इज अगेन द प्रूविंग न्यूटन थर्ड लॉ. यहाँ पे आप देखिए न्यूटन के थर्ड लॉ है. कैसे? यानी ये चार्ज को जितना रिपेल करेगा, ये चार्ज विद फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 by Q1
it will be the same and opposite direction of force acting on Q1 by Q2, it will be the same. So that action reaction will be there. ठीक है? तो चलो अब इसमें जो है now consider force acting on Q2 में भी fast, right? तो Q2 के अंदर हम जो लिखते हैं इसको force and the direction will be because of repulsive, the direction will be this one. And we said right in this one force, this is we will write a force, this will say as a force on 2 Q2 charge by 1 and we will write this. Remember, it means what? Force on charge 2 Q2 or 2 by charge Q1. Remember, on 2 by 1. ठीक है? Force on 2 by 1. Remember, force on 2 by 1. Remember, very good. डिनोशन को मैं बता रहा हूँ कि फोर्स ऑन 2 2 नंबर चार्ज के ऊपर बाई कौन सी चार्ज के काम कर रहा है फोर्स Q1. सो वी राइट इट फोर्स ऑन 2 by 1. ठीक है? सिमिलरली अच्छा, the distance between it is how much? Now these are vectors. Remember, these are the vectors. अब ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है. सो फ्रॉम वेक्टर प्रिंसिपल नाउ विल सी if the direction is this one. Now the direction is this one. So from triangle law or parallel law, whatever you consider, what is happening from triangle law? Yani this one, let's have, I don't know, this one R, suppose the vector R. So vector R equal to, what is actually, and this one R1 vector, let's write it here so that you can understand. R1 vector plus R vector equal to R2 vector. ठीक है? So R1 vector equal to, R vector equal to R2 vector minus R1 vector. ऐसे क्यों किया? ट्रिंगल लो ना, ये this adding this balancing this. So R1 plus R equal to R2 or R equal to R2 minus R1 and we write this denotation like इसको लिखते हैं हम R2 1. यानी क्या हो गया ना R2 from 1 यानी position 2 from 1 से आया because it is coming from 1. The force is also coming from 1. So direction of force and the position vector direction is the same. Position vector force. So we write it instead of R, we will write this one equal to R2 1. क्या बोला? फोर्स की डायरेक्शन इधर है और ये किस लिए है ना? पोजीशन वेक्टर एक्चुअली यहां से यहां गया. पोजीशन वेक्टर एक्चुअली यहां से यहां गया. ठीक है? सो विल राइट 4 to 1 यानी पोजीशन 2 from 1. Position 2 from 1. Position 2 from 1. Right? Because this is R2, right? Okay. So the force acting between this, Q2, what is this one? Q2 will be F equal to the K, yani 4 pi epsilon naught, this will be there only, right? Into Q1, Q2 over R square, R2 1 mod, you can say mod because it is a vector. So R square and the direction will be R2 1. Got it? Okay. Similarly, if we consider the force acting on this one, now force acting on this one, so force will be acting this side.
So the vector will be now this one. Vector will be now this one. So क्या हो गया? यानी R2 plus R equal to, I say this one R again, and this will be R12. This was 2 1, now this is R1 from 2 से जाना है, तो फिर क्या लिखेंगे R12, suppose this is vector, and this is R2 and this is the R1. Okay, so R12 vector, the position vector R12 actually R1 minus R2 vector, यानी क्या हो गया, R1 पहुंचना है, force दिया, so our position vector also towards that one, and from 2 we push this one, and force will be, this force will be 1 2. This is vector now, force is actually vector. Okay, remember now, force on 1 by 2 charges, and position vector, position of 1 from 2 position charges, Q2 position charges. ठीक है, और इनकी जो वैल्यू होगा नाउ, बिफोर सेटिंग ऑन दिस वन F2, ये F21 था, राइट, दिस इज F21 and this is F12, this is the value, no, this is vector, I put this vector, so this is vector, and this is again 4 pi epsilon naught, right, and this will be again Q1 Q2 over R2 R12 mod square R12 vector direction. ठीक है भाई साहब, so what do you understand? Now see, this R21 or R12, the distance is the same, only the position vector, the direction is the only opposite, distance is the same. Yani F12 actually the value is same. This value is same because what? Because mod of R12 vector equal to mod of R21 vector, right? Yes or no? Yes. So for this, F12 mod of this one equal to mod of F21. Only thing, if you set the vector, so F12 is opposite of F21. That is only thing, nothing more than this. Yani action reaction Newton's formula are also proved. So this is the Coulomb law in vector concept. By two charges interacting between the two, and by E epsilon naught is the permittivity between the two charges in media existed. Clear? Yes. ठीक है, क्लियर हो गया इस चीज को. ये हम फोर्स ऑन 2, force on Q2 charges by 1, so we write it F21, and this will be force on 1 Q1 charges by 2 exerted by the 2, and the direction will be here, this direction, and this direction will be this one. F1 will be this one, F2, F12 will be this one like this. And respect to position vector 0 0 R2 and R1, both are same, the position vector, only the direction of interaction is changing because force is vector. The amount of this one, this is actually value, and it is some numbers. Only the position vector determines the direction of force, because force itself is a vector, and it is generated due to the position vector. Force vector कैसे हुआ? Because Q1 Q2 का स्केलर है, तो उसके साथ जो इंटरेक्शन पोजीशन वेक्टर का हो रहा है, इसलिए फोर्स भी वेक्टर में आ गया. So hope you understand this one. ठीक है, अब हम दो या मल्टीपल चार्जेस आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, लेट्स हैव सम.
दो बॉडी या तीन बॉडी आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, मान लीजिए सपोज here is a cube. Now for better understanding, चलो let's have the cube and you can take anything. और दूसरा एक हम ले लेते हैं कि ये और चार पॉइंट चार्जेस एंड गिविंग यू लिटिल बिट हायर बट इट पॉइंट चार्जेस बेसिकली। एक Q1 और एक Q2 है, ठीक है, Q1 Q2 है और ये एक पोजीशन वेक्टर आपस में ये डिस्टेंस में है, ठीक है। और इनकी जो पोजीशन वेक्टर है सपोज दे आर, दिस इज R1 पोजीशन वेक्टर and it is in R2 position vector, Q2, and this is R position vector. ठीक है, R position vector। अब ये मल्टीपल चार्जेस जो है, लेट्स थिंक अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल चार्जेस ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज। ठीक है, अब हम इसको क्लास में पकड़ सकते हैं। कंसीडर प्लस, देन योर इमेजिनेशन विल बी बेटर, लेट्स से प्लस और प्लस माइनस करके कोई साइन दे देंगे तो हमें फोर्स की डायरेक्शन एज्यूम करना और अंडरस्टैंड करना इट विल बी वेरी इजी। नाउ सी द फोर्स, सपोज द फोर्स ऑन दिस वन, लेट्स इंटरेक्ट दिस वन फ्रॉम द अर्लियर वन, द दो बॉडी के अंदर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। So the force say the force acting between this one, the direction will be repulsive. Force on Q by 1, force by Q and 1, इसका नाम दे देने चाहिए मेरे ख्याल से, तभी आपको समझ में आएगा। Suppose this is QX or 1 2, let's have 3. This will be better than, this will be better than equal to, right? Or you can say this is 1, इसको हम इसी हिसाब से पकड़ लें तो ये आसान रहेगा। इसको भी 1 कर लें, then this will be 2, let's think, so this is 2 and this is 3 में, ये ज़्यादा बेटर रहेगा अपने को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। Now force on Q1 by Q2, this is force, what you denoted earlier, Q by 2, this is 1 by 2, this is 1 by 2, and direction will be how much? This one, this direction, ऐसे होगा। So this is vector, this is 1 2, force on 1 by 2, ठीक है। और this value, let's have the value also, वैल्यू भी दे देता हूँ। और इस केस में क्या होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन होगा। इसकी पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, इसकी पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा, दिस पोजीशन वेक्टर विल बी हाउ मच, बिकॉज़ द डायरेक्शन इज दिस वन, सो दिस विल बी r1 वेक्टर minus r2 वेक्टर and we will say r12, or you can say r1 from 2, ठीक है, for this one, and vector is coming inside this vector. So the force, this one between these two, the force between these two now, this Q1 1 by this is force 1 2 equal to क्या हो जाएगा, now 1/4 pi epsilon naught, then this will be Q1 Q2 over R12 mod square, and direction will be R12. ठीक है, ओके।
F12 equal to 1 by 4 pi epsilon naught, then Q1 Q2 over R12 mod square, and direction will be R12. Okay. Similarly, this is the force, this one. Now this acting on this, now this direction will be which direction actually the force कितना होगा इसका, इसके इंटरएक्टिंग जो फोर्स होगा, दिस इंटरएक्टिंग जो फोर्स होगा क्या होगा ना, इसके इंटरएक्टिंग जो फोर्स होगा दिस विल बी इन इस डायरेक्शन, ठीक है, ये रिवर्स करेगा एंड दिस फोर्स विल डिनोट क्या करेंगे ना Q1 सॉरी force 1 by exerted by 3 and this will be the vector, and this value will be force 13 will be again 4 pi epsilon naught, the interaction दो चार्जेस क्या है Q1 Q3 सॉरी over R13, the vector R13 को कैसे बोल दिया मैंने, इजीली बोल दिया R13 this vector, now this vector will be this position vector, so this will be R2, you see R1 minus R3, and we will say this one R13, we say this is R13, ठीक है, R13 and the direction will be this direction, so we will say R13, ठीक है. Now ये दोनों जो फोर्स एक्टिंग कर दिया एक ही पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, नाउ यू सी ये दोनों की जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो अल्टीमेट रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसके बीच में से इसके टेंजेंट के बराबर कहीं ना कहीं काम करेगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ आवर, ठीक है, एंड दिस रिजल्ट विल बी दिस, सपोज दिस इज F, the resultant force F will be vector of F1 plus vector of F2, यानी F13 and F12, say like this, ठीक है. Yes. ऐसे अगर अलग अलग आप देखिए एक पर्टिकुलर प्लेन में चला गया, अगर यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक प्लेन बोलेंगे तो ये प्लेन में चला गया, ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट रह सकते हैं, ऐसे और भी पॉइंट अगर रहेंगे, मान लो दिस इज Q4, दिस इज Q5, दिस इज Q5, दिस इज Q6, तो ये भी कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करेंगे और दोनों में जोड़ी अगर इंटरेक्ट करेंगे सबकी फोर्स अलग अलग, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फोर्स आते जाएंगे और ये एडिटिव होता जाएगा. F3 you know maybe 1 3 instead of 1 4 vector, then 1 5, like this it will goes on, ठीक है. और इसमें भी अब हम वेक्टर की अगर अमाउंट कैलकुलेट करने, is so many points of interacting this one, so the vector amount will be, the value of the vector will be like this, क्या हो जाएगा उस टाइम में, और इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं लाइक दिस, सो F of A whole force by all these things, so this like from this, so we'll take common of 4 pi epsilon naught, this is the permittivity of this area, and this will be the Q1 Q2 by R12 square, then also direction will be this one R12, then Q1 Q3 over R12 R13, the vector square mod square, and the direction will be R13, and so on. And if we take the similar charge, same amount of charge, same quantum charge, then you should again come out. उस केस में क्या हो जाएगा, अगर सेम चार्ज लेते हैं हर जगह में, दिस इज Q, दिस इज Q, दिस इज Q, लाइक दिस आपस में इंटरेक्ट करेंगे, सो दिस विल बी 4 pi epsilon naught, then this will be Q square, and this will be 1 by R12 square, then vector this direction,
like it is will be there. हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके भी आपको दिखाएंगे, छोटा सा एग्जांपल एनसीईआरटी में भी है, आप देख लेंगे उसमें। ठीक है, सो अंडरस्टैंड हो गया। मल्टीपल चार्ज अगर इंटरेक्ट करते हैं क्या होगा ना, डिफरेंट प्लेन में, अगर स्पेस में या तो सेम प्लेन में है तो अलग अलग जो रिजल्टेंट बनेंगे टोटल कलेक्शन ऑफ रिजल्टेंट को हमको ऐड करना पड़ेगा बाय पैरेललोग्राम और रिजोल्यूशन मेथड। दीज आर वेक्टर्स, नथिंग। ये वेक्टर के साथ एक्चुअली चार्ज की सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, नथिंग मोर देन दैट। वेक्टर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रख के आपको दोबारा करना पड़ेगा, वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल मल्टीपल डिफरेंट कंडीशन में कैसे इंटरेक्ट करता है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम करेंगे। एग्जांपल में है ऑलरेडी, बट इट इज अ लिटिल बिट टफ टू अंडरस्टैंड, सो लेट मी क्लियर दिस वन। एनसीईआरटी की 12 की बुक में है, पार्ट 1 में आपको, उसमें आपको अंडरस्टैंड करने में क्लियरिटी नहीं है, उन्होंने शॉर्टकट में डायरेक्ट बोल दिया, एंड दे हैव गिवन यू द टास्क टू प्रूव योरसेल्फ लाइक दिस ओनली। लेट्स टेक दिस वन एग्जांपल। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल 1.6, consider three charges q1 q2 each equal of q at the vertices of equilateral triangle of side A. What is the force on a charge q with the same sign as q? So it is a repulsive one placed at the centroid of the triangle as shown in figure like this. Okay. कह रहे हैं कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन चार्ज को ऐसे प्लेस किया है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी ऑल साइड इक्वल है, बड़ा छोटा हो गया, चलो कोई, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों वर्टिस के ऊपर एक चार्ज दे दिया, सेम चार्ज q1 q2 दिस वन q, दिस वन q, दिस वन q, और एक सेंटरॉइड के बीच में इन्होंने एक सेम चार्ज का प्लेसिंग किया, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है, मान लो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज, सेड इज ऑल पॉजिटिव फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड इजीली विजुअलाइजिंग दिस वन, सो दिस वन। और ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, अगेन ट्रायंगल, द ट्रायंगल बिकॉज ऑफ वेक्टर प्रिंसिपल वी नीड टू यूज एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस दैट और नथिंग मोर देन दैट। अब देखिए ये सेंटरॉइड के अंदर हमने कितना जाना था इसको, सेंटरॉइड दिस इज, एंड दे आर सेइंग द लेंथ इज l, okay, this length is l, so ये क्या है, this is l by 2, this is l by 2 because ये जो है सेंटरॉइड वो बीच में यहाँ पे दोनों को डिवाइड करेंगे इक्वली, राइट, इक्वली डिवाइड करेंगे, so this length is arm length is equal to this arm length will be how much, this is l square, this hypotenuse square, and this is l square by 4, so this is 3l square by 4, and so this one means height, so height, this is height square, so height equal to root 3l by 2, correct। and इसमें जो सबसे बड़ी बात है, you know, और आपको ये प्रूव कर सकते हैं, ये भी प्रूव किया हुआ है ज्योमेट्री में कि दिस इज द 2/3 पार्ट एंड दिस इज द 1/3 पार्ट, दिस इज द 2/3 पार्ट एंड दिस इज द 1/3 पार्ट, so the distance, this is height, this one, the interaction between the two, this and this charge, the length, ultimate length will be, suppose this is interacting length, let's say it's an interacting length, interacting length will be, say this is d,
this is D, sorry, R, that's R. So R would be 2/3. 2/3 2 by 3, and this is root 3 by 2L. So this is L by, this is coming nothing but the L by root 3, because 3 root 3, then this will be 3 only. So L by root 3. फिर इतना सा ही इसके अंदर था. अब यहाँ पे वेक्टर क्यों नहीं ऐड किया? नाउ यू सी इट्स ज्योमेट्री ले लिया भाई, इसमें तो वेक्टर कुछ है ही नहीं. ठीक है, वेक्टर के डायरेक्शन, वेक्टर इज ओनली वी आर यूजिंग दिस वेक्टर बिकॉज ऑफ position vector is only to define the direction of the interacting force, nothing more than that. Only this is interacting for to define the direction of the force between the two charges. Otherwise the distance is the same. Last time also we have shown कि ये दोनों की जो distance है, उधर की जो distance है वो सेम ही रहेगा. ठीक है, उधर की जो distance है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि आप उससे अब हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि r square equal to p square plus q square plus 2pq cos थीटा. ठीक है, ये दोनों के बीच में जो अगर मान लो यहाँ पे कोई इंटरेक्टिंग पॉइंट है तो यहाँ से अगर लेंगे, दोनों के एंगल लिखेंगे तो ये थीटा करके ये ऐसे ही आएगा. ठीक है, ये निकाल के आ जाएगा. दिस डिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज ऑलरेडी गिवन. ठीक है, तो उस केस में अब ये हो गया. अब देखिए दोनों के बीच में जो इंटरेक्टिंग फोर्स है, अब मैं किसको ले लूंगा? ठीक है, ये तो रूट 3 L by 3 हो गया सारे, L by रूट 3 हो गया सारे का. ठीक है, नाउ लेट्स कंसीडर दिस ऑल आर L by 3, L by रूट 3. जो आर्म की लेंथ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उस हिसाब से ये L by रूट 3 डिस्टेंस में सारे आपस में इंटरेक्ट करेंगे. करेक्ट. नाउ फोर्स. सो फोर्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और ये करिए, ये छोटा ड्राइंग है इसलिए. नाउ दिस वन, सपोज दिस इज द फोर्स, ये इधर एक फोर्स काम करेगा. चलो इसको तो आप मिटा दो, जगह छोटा हो रहा है, दिखेगा नहीं आपको आसानी से. ये L by 3 है. ठीक है, L by रूट 3 हो गया, दोनों की इक्वल टू R. नाउ सी the force between this one, this is Q and this Q, they have put in the number, no, नहीं दिया. Suppose this is Q1, they are sized in so that understand this one Q1, then this is Q2, then this is Q3, okay, this is Q. मान लो ऐसे ताकि understand. So इसकी जो force की direction है, and the direction of this one force, it is, let's define as this one how much, and this is Q0 or Q or this one, that did not define like this. ठीक है, तो इसकी जो फोर्स है, the force between this one F 0, maybe this is Q0, this is Q again Q0, so 0 on 1, 0, force on 0 on 1, sorry, force on 1 by 0, this will be this direction. ठीक है, similarly this will be this direction, and this will be this direction. यानी हो गया कि इधर काम कर रहा है F01 एंड इधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है F02 एंड इधर काम कर रहा है F03. ठीक है, और ये सेंट्रल पोजीशन है, दिस इज सेंट्रल पोजीशन O. ठीक है, अब देखिए, नाउ लेट्स हैव द वैल्यू as equal, all are equal. Let's have the value with this one. So F01 vector F01, right? This is 1 by 4 pi epsilon naught, as you understand from the formula. This is Q1, Q2, both are all Q's. So this is Q and Q over, यानी ये 0, Q0 and Q1, Q0 and Q1, F01 for this one. ठीक है, Q0 Q1 यानी सारे में Q लिख दिया because all are Q. Then the distance is this one, L over root 3 whole square, right? This is 1 by 4 pi epsilon naught. ये हो जाएगा into 3 Q square. That is 3Q square over 4 pi epsilon naught. And direction will be, now you put the direction, this one. This will be R01, R01.
R01 R01, okay, R01. If it is said about the vector, right? If it is a unit vector, each direction, the value is this one and this is the unit direction, unit vector, ठीक है, F012, ठीक है। अगर इसका हम मॉडल लेते हैं F012, F01, sorry F01, so mod this will 1, sorry. अगर इसके मॉडल लेते हैं, so mod will be this one, actually this will be again this is the same, the mod will be, and this will be 3q square, only the value, this is 4 pi epsilon naught, this will be 4 pi epsilon naught, and 4 pi epsilon naught the same. And in case of this one, in the other direction, so this becomes now 3q square over 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught. This is the only thing. And if you consider the other one, and the direction will be this one, so value is this one. इसके अंदर भी इंटरेक्शन कर रहा है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली, so ये अंडरस्टैंड हो गया। अगर इस केस में हम पकड़ लेते हैं कि F03, now put the F03 के अंदर क्या काम करेगा, this is a similar one and it will only the change will the direction, only the change will be the direction, only change will be the direction, excuse me. Sorry. So this will the only the change the direction and this direction, right? This direction, this will the only direction. This is the direction, this is the direction, this is the direction. So value will be the same one. It should, in case of this one only direction change, this will be the only direction change, and mod will be also same. Mod will be also same. यानी इसका भी जो वैल्यू है, this is 3q square by 4 pi epsilon naught. Similarly, this will also could be proved. 402, this one, the direction will be 02, this direction, this will be F02 direction, and this will be F03 direction as I said, and इसके भी जो वैल्यू होगा, this will be also 3q square 4 pi epsilon naught. तो क्या मतलब हुआ? बैलेंसिंग ऑफ फोर्स में हमने पढ़ा है, ठीक है, ये हम रिलेट करते हैं कैसे है, नाउ सी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर 120 एंगल में काम कर रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स, सेम फोर्स काम कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स काम कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, और ये तीनों डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट विल बी 0, बिकॉज ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं by triangle law or parallel law, this will be resultant will be this. So it will actually neutralize the two vectors की जो resultant vector है, ये अगर हम एक फोर्स resultant फोर्स लेते हैं तो इसकी जो इंटरसेक्ट होगा, this will bisect with this one, ये दोनों को bisect करेगा, और दोनों के बीच में कितना एंगल है, 120 है, so 120 है, so this is 60, the angle will be 60 and it was earlier already 120, so this is actually 180, यानी ये वाला दोनों आप ये फोर्स काम कर गया, F01 पे काम कर रहा है, और इसकी जो दोनों की फोर्स है F23 मान लो, so this is opposite this one and this is 180 degree, they equal the same, value is the same, because क्या हम जानते थे, देखिए r square equal to p square plus q square plus 2pq cos theta. अब हमारे केस में यहाँ पे देखिए PQ are the same, both values, suppose this is a f, so f square plus f square, suppose this is f, I said this is a f, only the detail one, value one, so f square plus f square, then 2f and f into this is cos theta is how much, between the two forces, the दोनों फोर्स के बीच में हो गया 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, ये दोनों के बीच में जो इंटरसेक्टिंग फोर्स है, इसकी फोर्स कितना हो गया ना 20 हो गया, ठीक है, सो कितना हो गया ना f स्क्वायर प्लस कितना हो गया इसको ना 2f स्क्वायर और cos 120, cos 120 कितना हो जाता है ना cos 180 minus 60, so this is minus cos 60, so this is minus half, ट्रिग्नोमेट्री के साथ देखिए, ठीक है, so this is minus half,
So this is nothing but this one. So this is f square plus f square, and this is minus f square. So 1 r square is neutral. So this is f. So r square equal to f square or r equal to f. यानी इसकी जो रिजल्टेंट आएगा this will be also f. And f is what? This is nothing but this one. और this is a neutral factor. यानी ये वाला जो फोर्स है ये भी सेम वैल्यू है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दिस विल बी न्यूट्रल. सो कहने का मतलब ये दोनों की रिजल्टेंट इसकी बराबर होगा, ये दोनों की रिजल्टेंट इसकी बराबर होगा. जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू विल बी फोर्स मैग्नीट्यूड विल बी सेम ऑल द ऑल डायरेक्शन. और ये पॉइंट मूव नहीं करेगा, वो यहीं पे खड़ा रहेगा. ठीक है. तो एग्जांपल वेरी क्लियर नाउ. होप यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स मूव टू द अदर एग्जांपल. वेक्टर, force interaction, Poisson vector, trigonometric or. वेक्टर चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ेंगे, फोर्स, दिस वन, ऑल दिस थिंग्स ना, इट विल वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड. वी नो वेक्टर की कांसेप्ट में आपको बहुत आसान रहेगा हायर स्टडीज के लिए. तो वेक्टर को बढ़िया से पढ़ें, हमारे वीडियो को देखें वेक्टर में. Next example 1.7. Now they are saying another condition. Consider the charge Q1, Q2 and minus Q1 placed at the vertices minus Q1. Remember यहाँ पे दे दिया इंटरैक्टिंग फोर्स. एक तो रिपल्सिव था, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा क्योंकि प्लस माइनस है. अब an equilateral triangle as shown in figure 1.10. What is the force on each other? ठीक है. क्या कह रहा है अभी? कंसीडर द चार्ज Q1, Q2 एंड -2 प्लेस्ड इन द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगेन वी आर सेइंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल. ऐसा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये आपस में जो है सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. मैं ऊपर नीचे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि फोर्स की इंटरेक्शन दिखाना मुझे इजी रहेगा. एंड दिस इज प्लेस्ड यू नो दिस इज Q1 इक्वल टू Q पॉजिटिव, दिस इज Q2 इक्वल टू Q पॉजिटिव अगेन, एंड दिस इज Q3 इक्वल टू Q नेगेटिव. ठीक है. और इसकी जो है लेंथ अगेन दे आर पुटिंग दिस ऑन द लेंथ ऑफ दिस आर्म इज L अगेन. राइट. ओके. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द फोर्स ऑन द ईच चार्ज. एक दूसरे के ऊपर फोर्स कैसे काम कर रहा है. एक दूसरे के ऊपर व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज. एक दूसरे के ऊपर फोर्स काम कर रहा है. राइट. ठीक है. नाउ लेट्स टेक, पहले मैं सी पॉइंट में अगर काम करूं, देखिए सोचिए, दिस इज द प्लस वन, दिस इज नेगेटिव वन, तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव फोर्स. सिंपली ये इधर को खींचेगा. यहाँ एक पॉइंट शायद हमने स्किप कर गया. लेट्स यू नो रिकैप दिस वन अगेन. दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो इंटरैक्टिंग फोर्स होगा, अब देखिए क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर में लिए हैं, ध्यान रखना वेक्टर के पोजीशन वेक्टर में दो पोजीशन की दो क्या कहते हैं पॉइंट चार्ज जो है, अगर पॉइंट चार्ज दोनों इंटरैक्ट करते हैं तो इसकी ऐसा नहीं है कि इधर से ऐसे करके मुड़ के काम करेगा, इसमें ऐसे करके मुड़ के काम करेगा. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर जो है ये मिनिमम दोनों लाइन को जॉइन करने के लिए, स्ट्रेट लाइन जॉइन करने के जो इंटरैक्टिंग होगा डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी ओनली वर्किंग फोर्स. ठीक है. ये जो है डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस में काम करेगा कि फोर्स तो ऐसे घूम के जाने रहा, वो सीधा वही इधर से खींच रहा, इधर से गया, बिकॉज इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द लाइन फोर्स ना. लाइन फोर्स मिनिमम के तरह इससे काम करेगा, उधर उधर घूम के थोड़ी फोर्स काम करेगा. सो दीज आर ऑल थिंग्स. राइट. सो ये दोनों जो लाइन डिस्टेंस है ये दोनों आपस में ऐसे काम करेंगे. सो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस वन अगेन दिस विल बी दिस वन ओनली. सो ये इसमें काम करेगा एंड इसमें काम करेगा. इन दोनों के आपस में कैसे काम करेगा, ये इसके ऊपर क्या करेगा, रिपल्स कर देगा, इधर घिसा देगा. ठीक है. और ये इसको क्या करेगा, इधर खींच लेगा, बिकॉज दिस इज पुलिंग फोर्स. अच्छा, ये इसको क्या करेगा, इधर धकेल देगा बिकॉज द पॉजिटिव सेम रिपल्सिव फोर्स. ये इसको क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा बिकॉज ऑफ यू नो दिस वन इज अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, सो इट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स. अब इसमें जो है हम फोर्स को अलग अलग डिफाइन करके देख लेते हैं कि एक्चुअली अब देखो
फोर्स का इंटरेक्शन इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, तो दो फोर्स सबके ऊपर काम कर रहा है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, लेट्स सी नाउ। लास्ट एग्जांपल के साथ कैरी ऑन करते हैं। सो फोर्स फ्रॉम 2 by 1, so let's say this one F2 1, force from 2 by 1, force from 2 by 1 this direction, so force this vector will be this one, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, force from 2 by 3, so this will be F2 and this will be 3, यानी F of 2 and this will be 3, ठीक है। ऐसे इस केस में इसके फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा, दिस फोर्स विल बी F of 1 and F of 1 over 2, F of 1 by 2, F of 1 by 2, force 2 का चार्ज 2, ठीक है। F of 1 and force 1 over 2, और इधर क्या काम करेगा, ऐसे इधर वाला फोर्स ऑफ अगेन दिस इज 1, फोर्स ऑफ 1 by 3, फोर्स ऑफ 1 by 3, ठीक है। इधर काम करेगा फोर्स ऑफ 1 by 3। इसके अंदर ये क्या काम करेगा, अब देखिए 3, फोर्स ऑफ 3 और by 1 इधर काम करेगा, समझे। तो वैसे तो इधर हम राइट साइड में देते हैं डायरेक्शन में दिखाने के लिए, चलो इट्स पुट ऑन दिस वन ओनली। और इसमें ऐसे क्या काम करेगा ना, फोर्स ऑन 3 by 2, ठीक है। देखिए now the catch it again, this is a trigonometry, now force interaction we got it idea, now the catch is the geometry and the vector, इन दोनों के आपस के बीच में बिकॉज ऑफ ऑल इक्विलेटरल थिंग 60 डिग्री, राइट, यस और नो, 60 डिग्री, ठीक है। ये सब 60 डिग्री हो गया। ये जब 60 डिग्री हो जाता है, आप देखिए अब मैं फोर्स की रिजल्टेंट वेक्टर निकालने की कोशिश करूंगा। सपोज इन दोनों की जो रिजल्टेंट है, ये क्या होगा, ये जरूर बाइसेक्ट करेगा, ये जरूर बाइसेक्ट करेगा और इस डायरेक्शन में काम करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा और इस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। बिकॉज दीज आर ऑल इक्वल, द वैल्यू ऑफ दिस ऑल चार्जेस आर इक्वल, सो इसकी भी जितना खींच रहा है ये भी इतना खींच रहा है, सो इट विल बी सिंपली बाइसेक्टर बिकॉज वेक्टर लास्ट टाइम ऑल्सो tan alpha equal to a this was a sin theta over b plus a cos theta, ये पढ़ा बना हमने, ठीक है ना। अब करके देख लीजिए, ये और बी सेम है, ये और बी जब सेम है तो क्या रहेगा, ओनली sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब sin 60 कर लो, तो दिस इज sin 60, दिस इज sin 60 पर टू ना, तो दिस इज √3 by 1, देन दिस इज 1 by दिस वन, कितना है cos 60 again half, cos 60 is half, so this is √3 by 2 and this is 2 by 3, so this is 2 cut, this is 1 by √3 and tan alpha equal to 1 by √3, this is how much, this is tan 30 degree, so alpha is 30 degree, प्रूव हो गया ना। वेक्टर में पढ़ा था कि 60 डिग्री है तो दोनों के इंटरसेक्ट कर दिया तो कैसे वैल्यू आया, 30 डिग्री आया ना, तो इट इज द बाइसेक्ट, ओके। ये जरूरत नहीं है वेक्टर 11 क्लास का, फिर भी मैंने थोड़ा दिखा दिया सो दैट यू विल गेट कॉन्फिडेंस ऑन द अदर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 30 डिग्री में हो गया। इसमें ऐसे कैसे होगा, इसमें भी ऐसे होगा। अच्छा, इसकी जो रिजल्टेंट है, सपोज दिस वन वी से दिस क्या देंगे इसको, चलो एच सी दे देते हैं, इसकी जो वेक्टर है टोटल फोर्स इसके अंदर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है इसका वेक्टर ऐसे काम करेगा एंड इट विल बी देखिए ये 1, दिस इज 60, सो दिस इज 120, दिस इज 120, दिस इज 120, अगेन इट विल बी 60, ठीक है। ये 60 है, इसके साथ ये 60 है और ये 60 प्लस 60 120 है, ठीक है।
और ये 120 है, सो दिस इज पैरेलल। यानी ये जो फोर्स है, दिस फोर्स एफ ए, द फोर्स एफ ए विल बी डायरेक्शन ऑफ, यू नो, दिस डायरेक्शन विल बी बी सी, डायरेक्शन विल बी बी सी, डायरेक्शन विल बी बी टू सी, और इसकी डायरेक्शन होगा यू नो परपेंडिकुलर टू दिस वन, परपेंडिकुलर, डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वन, दिस बेस। और इसके क्या फोर्स होगा, इसका होगा ये वाला, this will be F, if it's a B, and this direction will be, and इसकी direction क्या हो जाएगा, this direction, इसकी पैरेलल होगा, ये C, direction will be A to C direction। ठीक है, वेरी क्लियर नाउ कैसे कैसे फोर्स काम कर रहे हैं। अब वैल्यू क्या होगा, वैल्यू सिंपली है, बिकॉज ऑल आर सेम। सो अच्छा, इसकी जो है सी, इसकी जो है ये फोर्स कितना काम करेगा, हम उसी में चलेंगे। ठीक है, जो ये जो है, पहले ये कर लें या ये कर लें, पहले ये कर लेते, चलिए। ये वाला जो है इसकी वैल्यू क्या रहेगा, F इक्वल टू सपोज F A और F B इज द सेम, आइदर F A और F B इज द सेम, डायरेक्शन इज द इन ऑपोजिट, सेम। ठीक है, और इसको वैल्यू भी सेम, और F A मान लीजिए हम निकाल लेते हैं, F A इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into q square q1 q2, so q into q over this is l square। ये दोनों के बीच में काम कर रहा है, ये दोनों के बीच में काम कर रहा है। ये एक्चुअली दिस इज एफ ए, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये एफ ए नहीं है, क्योंकि ये दोनों के बीच में पहले मैं इंटरेक्शन निकालूंगा, तब जाकर रिजल्टेंट मिलेगा। ये दोनों के बीच में हमें इंटरेक्शन निकालना पड़ेगा, पहले ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन निकाल लेते हैं। सपोज दिस इंटरेक्शन इज F12, F12, ठीक है, और इसकी पोजीशन जो इसके डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सिमिलरली F13 ऑल्सो सेम। ठीक है, ये भी वैल्यू 1/4 पाई E0 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज q स्क्वायर बाई l स्क्वायर। सो ये दोनों के बीच में आप देखिए, ये दोनों के बीच में दोनों की वैल्यू सेम है, यानी क्या हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट देन q स्क्वायर बाई l स्क्वायर। ये तो सारे का हो गया इन दोनों के केस में। इसमें भी ऐसे काम कर रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन दिस इज q स्क्वायर बाई l स्क्वायर, दिस इज आल्सो सेम, दिस इज आल्सो सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई l स्क्वायर, दिस इज आल्सो सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई l स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों काम कर रहा है। अब इसकी जो रिजल्टेंट है, नाउ सपोज दिस इज f, ये वैल्यू मान लीजिए, अब हमने ये वैल्यू को कोई भी पकड़ लिया, मान लो दिस इज f, ठीक है, ये वैल्यू f है। सो ये दोनों के बीच में आप कैसे काम करेगा, ये दोनों के जो टोटल वैल्यू होगा, दिस इज वेक्टर प्रिंसिपल। नाउ अगेन द वेक्टर, दिस इज हमने क्या पढ़ा था वेक्टर के अंदर, दिस इज f a स्क्वायर, ओके, इक्वल टू सपोज r हमने पकड़ा r स्क्वायर, तो दिस विल बी p स्क्वायर, दिस इज द सेम f स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2f into f, both are same ना, and this is again cos 60, this is cos 120, so this will be f square plus h square, this is 2f square, and this is again 2f square, and cos 120 is the minus half, and we know this one, so this is again f square, 2f square minus f square, this is f square, so f a is equal to f, अब प्रूव हो गया। अब जो है f a जो है, this f a actually f, and this is nothing but the f12, यानी f12, this is f12 equal to, these are all mod, right, direction will be different, f12 और f21, तो ये सारे की जो फोर्स है और will be same, यानी ये जो फोर्स है, मैंने कोई फोर्स पकड़ा था f, दिस इज वैल्यू दैट दिस ऑन f, एंड ये वैल्यू इसकी बराबर, ये इसकी बराबर, ये सेम वैल्यू में ओनली द डायरेक्शन इज चेंजिंग, राइट, और डायरेक्शन इसकी बाइसेक्ट करेगा, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में भी करके दिया था, इस ये 120 है तो दिस विल बी ओनली 60, दिस विल बी ओनली 60, दिस विल बी ओनली 60। ठीक है,
तो इसके भी ऐसे फोर्स काम कर लिया ये दोनों के बीच। अब इसके ऊपर कैसे काम कर रहा है थोड़ा सा सोचो। ठीक है, इसके ऊपर जो है अपना कैसे काम करेगा, इसके ऊपर भी जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम के केस में कि ये 130 में काम करेगा, इसकी फोर्स वैल्यू तो सेम है, F31 F2 एंड ऑल आर सेम। तो इसके अंदर भी फैक्टर वेक्टर में वही काम करेगा। वेक्टर में क्या प्रिंसिपल लेंगे, यहाँ पे 60 डिग्री, वहां पे 120 लेंगे, वहां पे 60 डिग्री लेंगे। सो 60 डिग्री केस में क्या होगा, सपोज दिस इज FC स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, दिस इज F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर लाइक दिस, then 2 F31, this is value 1, right? F32, right? Then this is cos 60. This is cos 60. ठीक है? ठीक है कि नहीं? This is cos 60. अच्छा, सो ये सारे हो गया, कोई भी आपको कर लेते हैं। दिस इज f स्क्वायर प्लस दिस इज f स्क्वायर, दिस इज 2f स्क्वायर एंड दिस इज cos 60। ठीक है, दिस इज cos 60। cos 60 कितना हो जाएगा, एक cos 60 नहीं, दिस इज cos 60, राइट? हाँ, cos 60। सो दिस इज अगेन दी cos 60 द हाफ। cos 60 कितना है, हाफ है। cos 60 इज द हाफ है। sin 30 हाफ, cos 60 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। So this is 2, so this is actually 2x square plus x square and this is 3x square, right? So FC is equal to root 3. Very simple. So this is nothing but the f over root 3. And which is f? F is all are equal. F equal to f क्या है ना, f equal to f, we say this is a value। ठीक है, डायरेक्शन तो सबका अलग अलग हो रहा है। तो f इक्वल टू